Hello students. So it is another lecture from Information Technology Department. Myself is Professor Gauri Javle. Now here I'm going to show you the index for our today's lecture. Uh, Before starting with the today's lecture, so we will start. So what are the points we learned up till now? First one, input tags plus advanced tags, and for advanced input tags and the meta tags we learned all the information in the previous sessions. Then we deeply learned about the what do you mean by the css means cascading style sheet. Third point, we learned that various types of the css. The first one, internal css, external css, inline css. Then we learn about the types of the selectors. There are the four types. First we learned ID selector, then we learned about class selector, then we learned about the universal selector, and last we learn about from the types of the selector is grouping selector. Now today we are going to learn about the positioning of CSS, in which the first we are gonna learn static positioning, second the fixed positioning of CSS, and relative and the absolute one. From these four types of positioning of CSS, today we are only going to be start with static and the fixed CSS. So what do you mean by positioning in a CSS? To give the position property of any element, that means we are able to assign the particular position of your elements in your entire HTML code. Element property can be positioned by using these properties such as top, bottom, left or right. That means we can give the position of the element in these four directions: top, dot, bottom, left and right, while using this positioning in CSS. Here we are going to start with the syntax. To include this positioning in a CSS in your code, so what would be the syntax for that? Mainly you must have the selector, that means on which tag, on which element you are going to be allocate the positioning in a CSS. Then start with the position, that means the from that four types, uh, which positioning in a CSS you are going to be applied on. Then the top, bottom, left and the right, these four properties should be included in that CSS, and uh, it will depend on the need of your position of the element. If you don't require all the four properties being applied on that same selector, you can go for the single property at least. Okay, now where the values for the positions are fixed, relative, absolute, and the values of top, bottom, left, right in a pixels only. मतलब अगर पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन आपको पूरे कोड में, जैसे ही वो कोड HTML का कोड रन होता है, यू नीड टू एलोकेट और फिक्स सर्टन पोजीशन कि वहाँ से पोजीशन में आपका H1 के अंदर जो सेंटेंस है वो ऑन दैट पोजीशन ही प्रिंट होना चाहिए, उसके जो सेंटेंस है वो कहाँ पर भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए. तो आप ये प्रॉपर्टीज़ चूज़ कर सकते हो. Now there are the four types of positioning in a CSS. First one, static positioning, second, fixed positioning, third, relative positioning, and the fourth one, absolute positioning. So now in this today's lecture we are going to be now I will start with absolute positioning of CSS, in which this type of positioning allows you to place your element precisely where you want it. मतलब
जहाँ पर तुमको जो एलिमेंट्स है, टैग्स है, अपीयर होने चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर HTML कोड, तो वो आप एलोकेट कर सकते हो while using this absolute positioning of CSS. This positioning is done relative to the first relatively or absolutely position the parent element. ये एब्सोल्यूट जो पोजीशनिंग है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर रिलेटिवली हमको कोई स्पेस छोड़ के एक पर्टिकुलर जो टैग है वहाँ पर प्रॉम्प्ट करना है, राइट और अगर नहीं होगा, अगर अगर उसके पहले कोई भी जो एलिमेंट है, टैग है, यूज़ नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपका स्क्रीन का बॉर्डर है तो बाय डिफ़ॉल्ट कि वहाँ से मेजरिंग स्टार्ट हो जाता है टू गिव द स्पेस ऑफ योर एलिमेंट और द टैग्स. In this case, when there is a no positioning of the parent element, it will be position relatively directly to the HTML element. हाँ कि जैसे ही मैंने कि पहले वाले पॉइंट के लिए बोला कि अगर वहाँ पर कि रिलेटिव कोई भी पेरेंट नहीं है और क्या है पेरेंट टैग और द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, देन बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कंसिडर करेगा, योर बाउंड्री ऑफ योर स्क्रीन आफ्टर एग्जीक्यूशन. Here I am going to show you one example for that based on the absolute. See here, here I have used for the syntax h2. Over the h2 tag I am applying this position absolute. For that purpose I have been using here two properties, one is left and second is top. I have allocated the margin from the left side and the top side also, and I have choose here to give the position absolute. Here is in my body section of the HTML tag, HTML program, here is h1 the position property. H2 is showing that this is the heading with an absolute position. Over this sentences I have been allocated this absolute positioning in a CSS while using the two properties left and top. Then again I have used here the p element is there, p tag is there, which representing several sentences such as, with absolute positioning an element can be placed anywhere on the page. The heading below is placed 100 pixel from the left of the page and 150 pixel from the top of the page. मतलब यहाँ पर कि पेरेंट कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो भी उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो कहाँ से ये करेगा कंसिडर, जो आपका HTML ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद का जो स्क्रीन है तो वहाँ से इट विल गेट काउंट द मार्जिन्स, इट विल leave the 100 pixel from the left and it will leave the 150 pixel from the top to print over the sentences including in between the h2 tag open h2 tag close. मतलब ये सिर्फ अप्लाई कहाँ पर होगा, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ओवर ओनली h2 tag, बिकॉज हमने क्या किया है, we have been using the selector in the name of h2 only. Okay, so these all the features and the properties are styles are only applicable to the sentence in between h2 tag open and h2 tag close. Okay, then I am going to show you the after execution. See here, over the h1 tag, here it will get the properties because we are not going to be applied only any style statements over the position property, so it will remain as it is, the position property. Second, uh, I have applied the h2 tag over which I have been allocated the style statements. This is the heading with an absolute position over which I have been assigned the absolute positioning of the CSS, and remaining portion the p tag element, the sentences are remain as it is. मतलब अगर हमें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ऑफ द CSS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये मैंने यूज़ कहाँ पर किया था, ओनली ऑन द h2 टैग ओपन एंड क्लोज, तो उतना मार्जिन छोड़ के उसने वहाँ पर प्रिंट किया है, ये यूज़ होता है while using the absolute positioning CSS. Now we are going to learn about relative positioning CSS. अभी absolute हो गया तो next one है relative positioning of the CSS, in which what an element with position relative, मतलब इसका जो syntax होगा CSS का वो कैसे आना चाहिए, an element with the position is
is relative. Then it is position relative to its normal position. जो normal position रहेगा और जो previous रहेगा उतना margin छोड़ के second वाला print होना चाहिए. Now setting the top, right, bottom and left. So these are the four properties. हमको पता ही है कि अगर क्या positioning of the CSS हमें यूज़ करना है, उसके 4 types यूज़ करना है, तो वहाँ पर ये 4 properties important रहते हैं. Now that will cause it to be adjusted away from its normal position. तो अगर ये मार्जिन्स हम लोग एलोकेट करते हैं, जो भी नंबर ऑफ पिक्सल्स रहेंगे, वो पिक्सल्स हम जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके आगे हम एलोकेट कर सकते हैं. उतना स्पेस छोड़ के जो टैग के ऊपर, जो एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो उतना मार्जिन छोड़ के उधर प्रिंट हो जाएगा. सी हियर आई एम गोना शो यू वन शॉर्ट एग्जांपल. ये एग्ज़ाम्पल एक्चुअली जैसे हम HTML प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं वैसे नहीं, इधर मैंने एग्जांपल दिया है कि कौन से प्रॉपर्टीज़ मुझे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया. फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो मैंने क्या लिया है, पोजीशन, उसका क्या रहेगा, रिलेटिव रहेगा. देन लेफ़्ट वो छोड़ेगा 30 पिक्सल्स, वो करेगा लेफ़्ट, मतलब जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से वो 30 पिक्सल लीव करके प्रिंट करेगा. एंड टॉप से कितना करेगा, 70 पिक्सल छोड़ के. उसकी जो एरिया जो मैंने एलोकेट कर रखा है वो होगा 500 पिक्सल. जो भी टेक्स्ट मैंने एलोकेट करूँगी वो रहेगा सेंटराइज. देन सेकंड जो एलिमेंट होगा मुझे, तो वो क्या है, पोजीशन, वो होगी रिलेटिव. एंड विड्थ उसकी होगी 500 पिक्सल. देन टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा सेंटर. देन हियर सी हियर जो फर्स्ट एलिमेंट है, बिकॉज क्या है, इट इज़ अ relative one, so it is leaving the 30 pixels from the left and from the top it is leaving the 70 pixel. ये जो relevant है, it is relevant from the second pixel, जो second element है उसके लिए था, तो उतना pixels उसने क्या किया, left किया to print the first element. See here एक small example मैं यहाँ पर represent करना चाहती हूँ, in which I have been using both the two properties. First one is relative, second one is the absolute one. अभी इसमें क्या changes होंगे देखो. absolute अगर है तो वहाँ पर it will take the reference of the parent element, अगर हम absolute यूज़ करना चाहते हैं. और क्या है, relative मतलब जो relative रहेगा it will, जो पहले appear होता है, it will take the relevant the position from the in general margin or in general boundary of the HTML पेज आफ्टर एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन होने के बाद जो नॉर्मल स्क्रीन है, जो भी तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो वहाँ से मार्जिन लेना स्टार्ट करेगा. हियर अभी आप अगर देख सकते हो, इन बिटवीन द स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज, डॉट फर्स्ट मतलब क्या है, डॉट फर्स्ट मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया है, क्लास सिलेक्टर. ओके, तो क्लास सिलेक्टर मैंने चूज़ किया, मतलब एक ही पोजीशन में क्या है, रिलेटिव है, तो मैं बार बार इसका यूज़ कर सकती हूँ. ओके, इसलिए मैंने दिया है पोजीशन इज़ इक्वल टू रिलेटिव. जो मार्जिन देने हैं मुझे, मैंने वो मार्जिन दे दिया. ओके, अगर -10 कर रहे हो, अगर 10 कर रहे हो, तब भी वो इक्वली एप्लीकेबल हो जाता है. 10 पिक्सल एंड राइट 10 पिक्सल. देन सेकेंड जो एलिमेंट के ऊपर मुझे स्टाइल्स अप्लाई करना है, वो मैं यूज़ करूँगी पोजीशनिंग अगेन. एंड पोजीशनिंग यहाँ पर लेकिन मैं यूज़ करूँगी, वो क्या है, एब्सोल्यूट. वो लेफ्ट कर रहा है मार्जिन फ्रॉम द 100 पिक्सल एंड टॉप से वो करेगा 150. लेकिन वो टॉप कहाँ से यूज़ करेगा, सी हियर. नाउ जो एलिमेंट मेरे क्या है, एक होगा h1, जिसके ऊपर मैंने क्लास सिलेक्टर यूज़ किया है, h1 स्पेस क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट. फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम इंडिकेट करता है कि यहाँ मैंने क्लास सिलेक्टर के अंडर कोई CSS प्रॉपर्टी एलोकेट की है. वो एलोकेट कहाँ पर होगी, दिस इज़ द हेडिंग 1. इसके ऊपर, ये सेंटेंस के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगे. अप्लाई होने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्टाइल्स, द पोजीशन शुड बी रिलेटिव फ्रॉम द टॉप -10 px एंड फ्रॉम द राइट -10 px. मतलब ये प्रिंट होने के लिए उसने क्या करना है, रिलेटिव चूज़ करना है. और वो कैसे प्रिंट होगा, जो मार्जिन होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रिलेटिव है, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्क्रीन आने के बाद जो उसके जो रहते हैं ना बाउंड्रीज, तो वो बाउंड्रीज से वो लेगा, टॉप से वो इट विल लीव
10 pixel to print this sentence, and it will lose 10 pixel from the right direction to print this sentence again. ये हो गया applicable for the h1 tag. Now so what about to h2 tag? उसके लिए क्या करना है हमको? This is the heading 2. ये प्रिंट होना है. ये प्रिंट होने के लिए हमको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना पड़ेगा. वो क्या है? द पोजीशन इज़ एब्सोल्यूट, राइट. एब्सोल्यूट इधर अगर हम यूज़ कर रहे तो वो क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट एलिमेंट. पेरेंट एलिमेंट क्या हो गया? जहाँ पर हमने फर्स्ट ये क्लास सिलेक्टर यूज़ किया है, मतलब जो पहले प्रिंट होगा वो हो गया उसका पेरेंट एलिमेंट. तो उसके ऊपर उसके नीचे जो होगा वो अगर एब्सोल्यूट आता है तो एब्सोल्यूट क्या करता है? जो काउंटिंग जो उसको क्या करना है, इतने पिक्सल्स क्या करें, लेफ़्ट करना है. टॉप से भी क्या करना है कि 150 क्या करना, लेफ़्ट करना है. तो वो क्या कंसिडर करेगा? जो पहले वाला सेंटेंस प्रिंट हुआ है अभी वो क्या है? दिस इज़ द हेडिंग 1. तो वहाँ से वो क्या करेगा? काउंटिंग स्टार्ट कर देगा टू लेफ़्ट और टू ऑपरेट सच प्रॉपर्टीज़. लेफ़्ट 100 पिक्सल एंड टॉप 150 पिक्सल. मतलब पहले का जो सेंटेंस है वो प्रिंट हो गया. सेकेंड जो h2 टैग के ऊपर हमने ऑपरेट किया है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, वो ये सारे प्रॉपर्टीज़ अगर अपीयर करना है तो फर्स्ट को ही कंसिडर करेगा एज इन द नेम ऑफ पेरेंट एलिमेंट. मतलब जो प्रिंट हुआ है फर्स्ट जो भी सेंटेंस रहेगा तो वहाँ से ही वो क्या करेगा? काउंटिंग करेगा स्टार्ट टू प्रिंट द सेकेंड सेंटेंस. सी हियर, अगर ये प्रोग्राम में रन करती हूँ तो कैसे आउटपुट दिखता है. सी हियर, फर्स्ट क्या है? दिस इज़ द हेडिंग 1. उसने क्या किया है? टॉप से 10 पिक्सल छोड़े और क्या है लेफ़्ट से 10 पिक्सल छोड़े, वो हो गया प्रिंट. ये कहाँ पर यूज़ किया है? द फर्स्ट सेंटेंस कम्स अंडर टू ऑपरेट ऑन रिलेटिव पोजीशनिंग. वो रिलेटिव उसने क्या कंसिडर किया है? एग्जीक्यूशन स्क्रीन के जो मार्जिन से, वो इनिशियली जो मार्जिन से वो. अभी सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है लेकिन कि वो क्या कंसिडर करेगा? जो उसका पेरेंट एलिमेंट है. अभी के लिए जो सेकेंड सेंटेंस है उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? दिस इज़ द हेडिंग 1. तो जो मार्जिन हमने सेकेंड सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल किया है तो वो वहाँ से काउंट करेगा कि जहाँ से उसका क्या है? पेरेंट एलिमेंट है. तो पेरेंट एलिमेंट क्या है? दिस इज़ द हेडिंग. उसने क्या छोड़ा है? सो इट इज़ ऑपरेटिंग द टू प्रॉपर्टीज़. फ्रॉम द टॉप वो है क्या 150 पिक्सल उसने छोड़े, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द फर्स्ट क्या है? पेरेंट एलिमेंट जो उसका होगा वहाँ से उसने क्या किए? लेफ़्ट किए. ओके, तो मतलब टॉप के लिए उसने क्या छोड़े कि 150 पिक्सल छोड़ के इधर प्रिंट हो गया. और अगेन सेकंड प्रॉपर्टी भी उसने यूज़ की है, वो क्या है? लेफ़्ट से उसने कितना 100 पिक्सल छोड़ के वो प्रिंट हो गया. समझ में आया? तो हियर आई हैव बीन यूजिंग द रिलेटिव पोजीशनिंग अलॉन्ग विद द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग. अभी now I am going to show you the short notes over the 4 types. There are the 4 types of positioning of CSS. First one, static one, and this is the default value. All the elements are in order as they appear in a document. स्टैटिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमने अगर कोई भी पोजीशनिंग वहाँ पर अप्लाई नहीं किए हैं तो जहाँ पर जो एलिमेंट जो टैग अपियर होना चाहिए तो वो वहीं पर अपियर होगा. वहाँ कोई भी सेंटेंसेस कोई भी टैग्स इसके लिए अंडर अफेक्ट नहीं होता. कोई भी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. फिक्स, द एलिमेंट इज़ पोजीशन related to the browser window. So here the fixed one, so that means इधर क्या होगा? स्क्रॉल बार अगर हमने एलोकेट किया तो वो प्रिंट हो जाएगा और जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो उसके पीछे प्रिंट होते जाएगा. स्क्रॉल डाउन. रिलेटिव, द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. जो नॉर्मल पोजीशन है तो वहाँ से वो क्या करेगा? रिलेवेंट करेगा. एंड द एब्सोल्यूट वन, द एलिमेंट इज पोजीशन एब्सोल्युटली टू इट्स फर्स्ट पोजीशन पेरेंट. जो पेरेंट पोजीशन रहेगा वहाँ से वो एडजस्टमेंट करके 4 प्रॉपर्टीज़ के जो वैल्यूज़ रहेंगे वो उधर एप्लीकेबल कर देगा. होप you will understand this 4 types of positioning of the CSS. Thank you.